My first film was with them both. भाई कुर्सी दे दे बेटा, तेरे बैठने के लिए नहीं है, दे दे कुर्सी. अनु मालिका सर, आप इतना सटल एंट्री नहीं कर सकते हो. वो लोग सब बोल रहे आग लगा देगा, आग लगा देगा. ये आग आपने कब लगाई थी? ये गाने का है जवानी तो इश्क होना, कब लगी थी आग? Congratulations to the entire team of Hai Jawani To Ishq Hona Hai, to Ramesh ji and Kumar ji, and of course my absolute dear friend David Dhawan sahab. You know, when you hear this song today and you clap on this song, I remember the time when I actually composed this song with Sameer ji on the lyrics. David's love for something funky was fantastic, and I want to share a beautiful story. This song was made by me. Actually, this tune, this formation of the lyrics came to me when I was in Goa with my family. And us zamane mein we used to have these cassettes, you know, to record the song. And yeah, so unfortunately I forgot the cassette. And my daughter Anmol was with me, and I remember, I said, एक दिमाग में tune आ रही है, David की sitting होने वाली है. Will you remember this tune? So तोतली थी, तोतली के हिसाब से ऐ जवानी तो ऐसा कर, मतलब नहीं, वो नहीं. Ajana chule meri chuneri sanam. She remembered this tune, and when David came for the sitting, said, "कोई ऐसा गाना सुनाओ यार." अच्छा मैं ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रहा है. Suddenly I called Anmol and I said, "यार ये गाना सुन." बेटा मैं जब गाना बनाया था तो याद है ट्यून? हाँ डैडी मुझे याद है. आजाना तुमने मेरी चुनेरी सनम. And David heard it. यही तो गाना चाहिए मेरे को, यही तो गाना चाहिए. And the song was born out of the remembrance of my daughter, to be very honest. उसके बाद जब मैं गाने पर शुरू हुआ, रमेश जी आए, सब लोग आए, वाशु जी आए, सभी थे उस माहौल में. David jumped on the tune, said ये गाना मुझे कल रिकॉर्ड करके दे. And I want to tell you about David. David को गाना अभी पसंद आता है. He wants to record the song tomorrow. अब मजे की बात है, डेविड कल कैसे करें? कल ही होना चाहिए गाना. एंड जितनी भी फिल्में मैंने की हैं डेविड के साथ, every film is a blockbuster. Whether it's जुड़वा, whether it is BB number 1, and whether it's going to be है जवानी तो इश्क होना है. About Varun, I want to share. जितनी भी फिल्में आपने मेरे साथ भी की, मैं बताता हूँ, मैं वरुण के बारे में बताता हूँ. वरुण was very very small. राइजिंग सन में हम जाते थे, मैं बाजा लेके पहुंच जाता था वहाँ. And वरुण पर्दे के पीछे खड़ा होता था, पर्दे के पीछे, and he used to watch me and David working, and I used to see where Varun will not remember this. He used to do a jig on all the Masti Wala songs. Then Varun used to dance on the songs. This is the Varun, the one, the superstar. I think you should applaud this boy. He was committed to cinema from the day one when I set my sights on him. One of the most cutest, adorable, handsomest person. We love you, Varun. Thank you. We love you. But I love you as well. But in चुनरी वो जो आते चुनरी वो आपकी आवाज है? वो मेरी आवाज है. चुनरी वो मैं ही हूँ. नहीं, एक बार आप गा के सुना दो प्लीज, क्योंकि डरा देता है तू सोने से. Congratulations आपको, आपके डैडी को, पूरी टीम को. थैंक यू ब्रदर. बट मेरा पहला सवाल पूजा जी आपसे होगा, दूसरा सवाल आपसे होगा. पूजा जी, सबसे खास बात क्या है वरुण को एज ए कैरेक्टर? हम देखते हैं काफी लोग कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ. आपको सबसे ज्यादा कंफर्टेबल क्या लगा वरुण? आई थिंक वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है और बहुत नॉर्मल है. सो दैट वाज द बिगेस्ट प्लस पॉइंट. एंड आई फील लाइक अगर मुझे आई थिंक मैंने उसको बहुत तंग किया है ये फिल्म पे, बिकॉज मैं थोड़ा डेविड सर को कुछ बोलने में डरती थी. तो आई ओनली हैड वरुण टू टेल ऑल माई इश्यूज टू एंड माई प्रॉब्लम्स एंड व्हाट आई फेल्ट अबाउट द सीन. सो सॉरी वरुण, बट ही इज एक्चुअली बीन रियली आई डोंट थिंक एनीवन नोज दिस पब्लिकली, बट पूजा एंड मी आर फ्रॉम द सेम स्कूल. हम लोग एक ही स्कूल गए थे. कभी इस तरीके से दिखती नहीं थी. एक तो 1 second. Varun was my senior, okay, and Varun didn't know I existed because मैं बहुत ही shy थी, and I obviously knew of him, but I didn't really know him. Did he bully you as a senior? Let's just talk about. He didn't know I existed. But what was his? I was too shy, and he didn't know I existed. Only I think he Natasha and my brother were in the same class. Yeah, they were in the same class. But all that aside, he's just been like, you know. Even Chunky sir is from our school. You're from that? No. You are? कितना पुराना स्कूल है तुम्हारा? He's like, I was a princess.
principal. Chunky was still school only. केजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड में था, फर्स्ट में फेल हो गया तो निकाल दिया. Chunky something. But yeah. वरुण जी यहाँ पे विशाल अभी जी मेरे- आइकॉनिक गाना है जो किया था सलमान सर ने. आपने फिर से जुड़वा 2 के बाद एक ऐसा चीज है जो सलमान सर का फिर से रिक्रिएट कर रहे हो, तो ये कितना चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि वो आइकॉनिक है. हाँ जी. एंड लोगों के मन में आज भी है, लोग आज भी सुनते हैं उस गाने को. Correct. एंड उस गाने को फिर से करना विद अ ट्रू ब्यूटीफुल सी गाना तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है अपने में. इन 2 ब्यूटीफुल कन्याओं के साथ नाचना कितना चैलेंजिंग है, या वो गाना. सी गाना तो रमेश जी ने बनाया था. वी हर्ड इट फर्स्ट टाइम हम लोग जब स्कॉटलैंड में था. इट्स ऑल द सॉन्ग्स सब रमेश जी ने बनाए थे, और म्यूजिक कंपनी तो ऑब्वियसली गाने दे ओनली मेक, एंड वेरी वेल ही इज मेड द सॉन्ग. एंड चैलेंजिंग मतलब इन द सेंस एट द एंड ऑफ द डे आपको कोई भी गाना मिले, जैसे वाओ भी मिला हमें, यू कमिट टू द सॉन्ग, यू कमिट टू द सिचुएशन. हमारे फिल्म में जो सिचुएशन है जहाँ पे गाना आता है, इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. एंड इट्स अ कॉमेडी फिल्म आफ्टर ऑल, यू नो. तो वो मस्ती है, वो सिचुएशन है कि डबल ट्रबल है, या आई यू विद वन गर्ल, आई यू विद बोथ द गर्ल्स, क्या मामला है. हाउ, एंड जैसे आपने कहा कि हाउ कैन यू हैंडल 2 सच ब्यूटीफुल गर्ल्स, जैसे आपने कहा. आप मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं ये सब करता नहीं हूँ, ये सिर्फ स्क्रीन पे होता है. बट बाकी तो हाँ ये बायोपिक है. नहीं. बाकी पिक्चर में देखो, शायद पिक्चर में एक और लड़की आ जाए एंड में तो. वही मैं बोल रहा था, वरुण ने विश लिस्ट दी थी आपको क्या? नहीं, मैं- A to Z जो भी चाहिए, इवन कार चेसेस आ गए. नहीं, आई थिंक जो ज्यादा रोमांस चल रहा था मनीष और वरुण के बीच में चल रहा था, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज से कि ट्विस्ट ये है कि मनीष के साथ भाग जाता है. थैंक यू सो मच मुझे सवाल पूछने के लिए. मैं बस इतना कहना चाहूंगा, मुझे फिल्म में बहुत मजा आया है काम करके. थैंक यू सो मच. 5-6 सवाल मेरी ओर आए, आई नो. लेकिन बस यार मैं तो यही कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं कोई परवाह. बॉस मालवीय नगर से आया लड़का हूँ, दिल्ली से. वहां पे ब्लैक में टिकटें खरीदी थी जुड़वा फिल्म की, डेविड धवन सर की, और उनकी फिल्म में काम करने का मौका मिला है. इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता. सो सर, लव यू, थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स टू द एंटायर मीडिया एंड जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, बिकॉज ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा हुआ है कि किसी फिल्म के ट्रेलर के लॉन्च की रिहर्सल हुई. आप लोग रिहर्सल पे आए, बहुत अच्छा लगा, और आज आप एक्चुअल ट्रेलर लॉन्च में भी आ गए, बहुत खुशी हुई है. थैंक यू वेरी वेरी मच. थैंक यू. हेलो, हाय दिस साइड, हाय दिस इज अमर. Work also. Big round of applause for him also. It's incredible. He maintains and he looks. Everything is the same. You go back the number of years, you'll be shocked that इतना लंबा टाइम भी हो चुका है. And he's very काश इसको funny बेचारे को also. कोई बता सके कि कितने महीने घर पे भी बैठे. अरे नहीं सर. एक लुक में फंस जाओ, दाढ़ी दूढ़ी उगा के, उसके बाद 2 साल 2.5 साल बैठे रहो घर पे. रोशिश. सवाल है क्यों? Hello everyone, hi Amit Bhatia this side, Bhatia ji. David sir, hello here, यहाँ सर, सर आपको सुनना, आपको देखना बहुत नॉस्टैल्जिक है हम सबके लिए. हमने तो मतलब आपका सिनेमा तो आई थिंक ट्रेलर पे भी हर फ्रेम पे स्टैम्प है डेविड धवन फिल्म की, और आप बहुत सेहतमंद रहें, मतलब हम सब यही चाहेंगे क्योंकि बहुत फिल्में आप और बनाएं. मेरे 2 सवाल, एक वरुण से है और एक राजेश जी से है. वरुण, जब डेविड धवन की फिल्म होती है तो वो डेविड धवन की फिल्म होती है, उसमें कोई कितना बड़ा सुपरस्टार हो दैट इज सेकेंडरी, बट अभी हम देखने जाते हैं कि डेविड धवन की फिल्म है, तो डेविड धवन का हीरो बनना वो कितना इजी है, कितना मुश्किल है बीइंग, क्योंकि वो आपके पापा भी हैं. और राजेश जी, ये आपकी हमारी बात भी हुई थी, लास्ट रिकमेंडेशन, बड़ा खूबसूरत किस्सा है इस फिल्म के साथ. तो पहले मैं चाहूंगा वरुण जवाब दें एंड देन आप इस सवाल का जवाब. अमित, देखिए, इनके साथ काम करना ना मतलब आग के साथ खेलना होता है. बिकॉज एज एन एक्टर यू हैव टू बी रेडी. ही कैन गिव यू एनी काइंड ऑफ सीन, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. 1 मिनट में थॉट आएगा कि यार टॉक इन दिस एक्सेंट, ये करके बताओ, या वो करके दिखाओ, या ऐसे बोलो, या ये डायलॉग ऐसे बोलो. तो यू आर ऑलवेज मतलब इन द लाइन ऑफ फायर. आप कैसे परफॉर्म करोगे. You have to be a very good actor to do well in his cinema, and that's why he casts only good actors. आप देखेंगे, I think अली भाई, ये आपकी, आप कौन सी नंबर फिल्म है आपकी? I think 4th या 5th. 4th या 5th? 5th I think. 5th film. मतलब any film is there is a role for Ali, and Most of the time I think it was जुड़वा 2. उसमें तो कैरेक्टर ही नहीं था, तुम कर रहा है मेरे साथ, बस इतना था. एंड लंदन पहुंच गया, सीधा सेट पे गया, क्या करेगा तू बोल.
एंड 3 सीन हो गए एंड मजेदार मतलब। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सारे एक्टर्स यहाँ सबने यही कहा कि आपको बहुत एक्टिव होना पड़ता है। एंड सबसे बड़ी बात जो एक्टर्स के लिए है, हम कभी ना कभी किसी को चीट कर लेते हैं, अरे यार ठीक है 19-20 कर लेते, इनको चीट नहीं कर सकते आप इनको चीट कर ही नहीं सकते। ये मतलब कहाँ से क्या चीज ढूंढ के निकालेंगे। एंड जैसे चंकी सर ने कहा कि ऑन द सेट ही एडिटिंग होती है और बोलते हैं तू जल्दी कर ले नहीं तो मैं काट दूंगा। और एक लाइन जो मनीष ये सबसे ज्यादा मैंने सुना है। हाँ जो मैंने भी सुना, रबड़ मत कर तू रबड़ मत कर। तो ये ऑनेस्टली प्रिविलेज है हमारे लिए, हम सब के लिए, और तरसते ये लाइन सुनने के लिए ना कि रबड़ मत कर। पर एक बात मैं सर की बोलना चाहता हूँ यार, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। और इनका बड़प्पन ये है, ये खुद एक्टर्स को कॉल करके बुलाते हैं। ये नहीं होता कोई टीम से कॉल कर रहा है। मुझे याद है कुछ सीन करने थे, मैं कहीं और शूट कर रहा था, इनका कॉल आता है मनीष किधर है, मैं सर मैं कहीं, हाँ तू पहुंच महबूब स्टूडियो पहुंच, मैं सर मैं शूट कर, अरे मैं तेरे को कॉल कर रहा हूँ तू पहुंच। मैंने कहा अच्छा मैं वहां पहुंचा, इन्होंने पकड़ के 3 सीन पेल दिए मेरे साथ फटाफट, 5-10 मिनट में इन्होंने बताया टक टक टक। बट ये बहुत कमाल की बात है, एक बार जोरदार तालियां सर की होनी चाहिए। आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू लर्न दैट कि सिर्फ टीम कॉल न करे, वो खुद कॉल करते हैं। राजेश जी और I remember growing up, all films of David sir were those kind of films where my parents were like, let's go together as a family. And even those songs which became viral during that time, those actresses had a strong footing and they kept on working with them. Now you both are official certified heroines of a David Dhawan film. How do you place this film in your filmography, both of you? I always feel that if a girl can do comedy, like it's a game changer. And I think personally, of course I really love serious films and all of that, but मुझे ऐसे लगता है कि पैकअप के बाद जब मैं घर जाती हूँ और मुझे अनवाइंड करना है तो मैं हमेशा कॉमेडी, I watch something which has comedy in it, right? So I always wanted to be part of a good comedy film, and of course David sir has had these iconic heroines, whether it was Karishma Kapoor or Sushmita, Juhi Chawla, and the one common thing was that they could really do comedy. So for me that is a very important part of if you want to be a commercial entertainer. And it was my vacation film to be honest क्योंकि तब मैं बहुत सीरियस फिल्म्स कर रही थी एंड आई फील लाइक डेविड सर के साथ इतना लाइक 4 बजे पैकअप हो जाता था। ओके वी हैड टू स्लो हिम डाउन, बी लाइक कि थोड़ा और यू नो शूट कर लो यहाँ पे। एंड आई थिंक ही ऑल्सो स्पॉइल्स यू एज एन एक्टर because he knows his edit, वो बहुत fast shoot करते हैं। तो now when I go on different sets, I feel like ये scene तो David sir आधे घंटे में खत्म कर देते। That's my game I play when I'm on different sets. So I think that he spoiled us. So in your film, in my filmography, I feel like I want to entertain people, I want to make them laugh, and I hope I do that with this film. I just want to say one thing. बार-बार आप लोग से comedy film comedy. I make entertainment films. I don't call it comedy. And my guru has been Manmohan Desai. I follow. That's my guru. The highest grade of entertainment. Hello everyone. Hi. Oh. Me up and said कि तू डेविड धवन की फिल्म कर रहा है. So that's why what the story is. So wherever he is, I think he's blessing us with this great film and we are part of. And someone who's I think my dad's first call in the morning, Mr. Rumi Jaffrey. I don't think he tells my mother good morning. हाँ रूमी उड़ गया। मतलब मैं 30 साल से ही सुन रहा हूँ, हाँ रूमी उड़ गया। मतलब ये बेचारे उठे भी नहीं होंगे तो वो उठ ही जाए थे। हो गया हनान भाभी, मतलब ये वरुण ने बिल्कुल सही बोला। डेविड साहब को पता है मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, ये जल्दी, फिर भी इनका फोन आता है, सो रहा है चल उठ जाता फोन कर। खैर लेकिन मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ आया मुंबई और फिल्मों में काम शुरू किया, जब डेविड साहब की पहली फिल्म लिखने गया तो मुझे लगा मैं एज ए राइटर जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे पूरा परिवार मिल जाएगा। मेरा अपना परिवार तो भोपाल में है, मुंबई में अगर मेरा कोई परिवार है मेरा तो डेविड साहब,
वरुण, रोहित, लाली भाभी, इवन लाली भाभी की सिस्टर्स, डेविड साहब के भाई, अनिल भाई साहब, रोहित, वरुण, ये सब मेरे अपने सगे परिवार के लोग हैं यहाँ पे। हमारा रिश्ता काम से बहुत आगे निकल गया है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज जब मैं दूसरे लोगों के साथ काम करता हूँ तो पता लगता है, आपको पता है डेविड साहब और मैंने डेविड साहब के लिए 21 फिल्में लिखी। आज एक फिल्म देखने में आदमी का दिमाग खराब हो जाता है कि 2-2 साल नहीं लिख पाते, और समझ में नहीं आता। हम कभी डेविड साहब बात करते हैं कि कैसे लिख ली, कब बन गई पता ही नहीं चला, हंसते खेलते फिल्में इतनी बन गई। और मुझे एक और खाली मैं किस्सा डेविड साहब सॉरी बताना चाहता हूँ कि डेविड साहब कितने इन्वॉल्व होते हैं और कितने अपनी चीज़ों को लेकर ज़िद्दी हैं। समीर साहब ने सुनाया, एक और गाना था हमारी फिल्म जुड़वा का, जब गाना रिकॉर्ड हुआ, ऊंची है बिल्डिंग लिफ्ट तेरी बंद है, तो साजिद ने मुझसे कहा, रूमी ये क्या गाना रिकॉर्ड किया डेविड? मैं क्यों? बोले बंगले में रहती है। तो मैंने डेविड साहब से कहा, मैं साजिद बंगले में लिफ्ट ढूंढ रहा है। बोले उसको बोल खामोश रहे, मेरे मामले में बोलना नहीं, सुपरहिट गाना में कर। तो और दूसरी बात, शूटिंग पे एक्टर के साथ इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब वो रिहर्सल होती है, उसी में उनको पता लग जाता है कि ये काटना है। तो एक बार बड़ा अच्छा शॉट था, गोविंदा से इनकी मोहब्बत कमाल है, ये मैं आप सबको बता रहा हूँ आज तक। तो वो गोविंदा शॉट दे रहा है, ये ऐसे देखते हैं, चलते जाते कट, ओके। तो कैमरा मैन ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले आप आ गए चलते चलते प्रेम में। तो खैर मेरी दिल से दुआ है, पूरे पूजा यहाँ बैठी, इनको भी मैं, वरुण मालूम है, ये जब 8 में थी तब से जानता हूँ, जब ये हीरोइन नहीं बनी थी, और इनसे मैंने तब कहा था, इनकी मम्मी डैडी बैठे हैं कि ये बड़े होके हीरोइन बनेगी। पूजा बात कर रहे हो? तो मेरी दिल से दुआ है कि है जवानी तो इश्क होना बहुत बड़ी हिट हो। सारी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, आई हैव टू से रूमी जी दैट इट वाज वेरी ट्रू। और तब मेरे सपने में भी नहीं था कि मैं हीरोइन बनूंगी, या फिर लाइक आई कम फ्रॉम अ वेरी अकेडमिकली ड्रिवन फैमिली, और मेरी फैमिली में किसी ने भी ये फील्ड में कुछ भी लाइक रिलेटेड भी नहीं किया था। तो व्हेन आई गो टू फिल्म्स आई ओनली यूज्ड टू वॉच इट एज अ फिल्म। तो मुझे आई डिडंट इवन थिंक इट वाज लाइक अ जॉब दैट वाज पॉसिबल। एंड आई रिमेंबर रूमी सर हैड टोल्ड मी कि आपको ना फिल्मों में ट्राई करना चाहिए, एंड आई वाज लाइक नहीं रूमी जी, मुझे नहीं पता नहीं। सो इट्स लाइक अ होम थिंग दैट ही इज हियर टुडे। थैंक यू। Actually, before we go ahead, my chacha is in the audience. Mr. Anil Dhawan, the legendary Anil Dhawan is here. He's the fittest Dhawan, like I say, the fittest Dhawan. चाचा, आपको अगर आपके छोटे भाई से कुछ, मैं अगर आज इस लाइन में हूँ, I have come here because of him. He is the main reason of me sitting here, and because of me, he is here. So you know, it is always like that. we are all there because मैं of वही my सोचता chacha. था, अगर अनिल भाई साहब फिल्म लाइन में नहीं आते, कहीं और काम कर रहे हो, तो मैं भी वही कहीं काम कर रहा होता। So just see the credit, what he came, he struggled, and that's how. I know he's a certain age right now. He's not at the age that we can give him advice, but there's one man who can give him advice. That's Mr. Anil Dhawan. Yeah. If someone can give my chacha the mic, chacha, any advice you want to give your younger brother?